state and explain Kepler's law of gravitation with diagram. So the next question is, we have to explain Kepler's law of gravitation. Kepler's law, there are three laws. First law कौन कौची जोटा कि हमारा law of your area, law of orbit, first law. So according to law of orbit, each planet revolves around the sun in an elliptical path, and the sun will be at one focus. So एटा हला हमर गोटे ellipse जेहेतु हमर ellipse रो दीटा रहउची फोकस, एठी गोटे सपोज एठी गोटे. So as per this law, sun गोटिए फोकस रे ही रहइबो, one फोकस रे रहइबो, दीटा फोकस गोटिए फोकस रे रहइला sun, and the planet is moving. एटा हला हमर planet. The planet is moving or rotating, revolving around the sun in an elliptical path, right? So the law says the planet revolves around the sun in an elliptical path with the sun at one focus or one foci. You can say foci means double focus. So sun rahila gotiye focus re, elliptical path re move kala ki planet. This is your first law, law of orbit. Second law hala law of area. Second law जोड़े क्या हमारा law of area. So according to this law, Kepler's law, हमारा गोटे particular time रे, suppose गोटे planet टा 80 थिला and 80 कैसला at this certain interval रे, again 80 यही position right? So according to this law, the planet covers equal area in equal interval of time. Suppose t time रे planet A position ରୁ B position को आसी परछि एई पट साइड रे, and सेई t time रे position C ରୁ position D को जाई परछि ए पट साइड रे. sun रो गोटे साइड लेफ्ट साइड रे t टाइम रे a रू b को आसुची, राइट साइड रे सेही t टाइम रे c रू d को जाउची. सो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया लॉ बा लॉ ऑफ एरिया कि ए टाइम रे t टाइम रे सन प्लैनेट जेति की एरिया कवर कला सेटा सबुठी समान, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे इक्वल एरिया ही कवर करबो. माने एटा को जदी पोजीशन O देबी, O A B एरिया जेति की O C D एरिया सेति की, राइट? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया, राइट? सो A रू B को आसुची T टाइम रे जेति की एरिया, सेही T टाइम रे सपोज B रू एठी की गला सेति की एरिया जोठी भी जाऊ इक्वल एरिया से कवर करबो. सो क्लियरली एठी हमर कोन होची ना हमर स्पीड टा कोन हो जाउची, एठी स्पीड टा हमर फास्ट रहउची एंड एठी स्पीड टा स्लो रहउची, जोथि पई स्पीड कम जोगु से समान टाइम रे लेस डिस्टेंस ट्रैवल करची. सो क्लियरली एठी ए बी रो लेंथ जेति की व्हिच इज मोर देन ct लेंथ, राइट? बिकॉज़ स्पीड इन दिस साइड जोटा नियरर टू द सन सेठी स्पीड मोर, जोटा फार्दर टू द सन सेठी स्पीड लेस. So सुतपे CD रो लेंथ कम रहउची देन AB रो लेंथ. This is law of area according to Kepler's law. Then your third law कोन ना law of period जोटा हम कुछे law of period. So period means time period. Suppose the planet is revolving around the sun and that for one revolution जेति की टाइम नउची सेटा हम कुछे period of revolution. Period of revolution means the time taken or the time required for the planet to complete one revolution. So say period of revolution square, right? Square of the period of revolution कौन करछि proportional to cube or cubic distance
को डिस्टेंस सन और प्लैनेट भितर जेति कि मीन डिस्टेंस रहउची एवरेज डिस्टेंस रहउची सो टोटल पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन रे डिस्टेंस यू कैन सी डिस्टेंस वेरी करूची एठी अधिक रहउची एठी अधिक रहउची ग्रेजुअली कमी कमी आछी सो टोटल जेति कि डिस्टेंस रहउची सन एंड प्लैनेट भितर तार गोटे एवरेज डिस्टेंस वी विल टेक सो दैट एवरेज डिस्टेंस माने हमर टाइम पीरियड जदी t हुए t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हमर डिस्टेंस टा हम r नबा r क्यूब सो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is proportional to directly proportional to cubic of the mean distance between sun and planet ठीक अछि काहे कि mean distance रोचे because each and every time distance between sun and planet is changing so जेहेतु चेंज होचे हम we will take the mean distance or average distance right so this is Kepler's law so the last question how does acceleration due to gravity vary with height and depth is acceleration due to gravity केमिति चेंज होची हमें सपोज एटा हला हमर सरफेस ऑफ अर्थ रु ऊपर को जीवा केमिति चेंज होची टुवर्ड्स सेंटर हमें जीवा केमिति चेंज होची माने एटा हला अल्टीट्यूड हाइट हिसाब रे केमिति चेंज होची अगेन डेप्थ हिसाब रे केमिति चेंज होची हमें सर्टेन डेप्थ को जाउछे सपोज d डेप्थ को बोले एपटे हाइट सर्टेन हाइट को जाउछे लेट्स से h हाइट को जाउछे सरफेस ऑफ अर्थ रे जेते की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अछि सेटा मु स्मॉल g लिखुछि राइट g मींस g हला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन सरफेस of earth so how this g value the value के हम already जाने से 9.81 meter per second square so this value how it varies as we proceed towards high altitude or as we proceed towards the depth हमें जाने से g रे value कमुची it will decrease but how why it will decrease देखो हमें suppose एटा हला center of earth सो जे एठी जेते बडे ऑब्जेक्ट गोटे रहउची अर्थ मास ता एठी कंसंट्रेट हेक रहिला जोटा कि तार सेंटर रे एंड एठी जेती मास ता रहिला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केतेला सपोज एटा सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हला इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ हम कि नहीं रेडियस ऑफ द अर्थ सो रेडियस ऑफ अर्थ रहिला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नाउ हम जेते हाई अल्टीट्यूड को जीवा ऊपर को जीवा सो द दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज होची and Newton's law of gravitation हिसाब रे F proportional to 1 by r square so distance of separation जेते बढ़ी जीवो से फोर्स सेते कमी जीवो फोर्स कमियो माने हमर g रे भी कमियो रीजन हला से so F proportional to 1 by r square so जो टू हमें g equal to gm by r square हमें बाहर करछे g equal to gm by r square बाहर करछे so सेही concept रही जेते डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़िबो सेते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रे वैल्यू कमी कमी जीवो राइट दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस एंड तमरो कोर्स रे नाही खाली जानि था कि स्मॉल g रे वैल्यू केते रहिबो ना स्मॉल g ऑन सपोज हाइट h इक्वल टू स्मॉल g दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस इनटू 1 - 2h डिवाइडेड बाय r अगेन कहरो खुशी एठी g h means acceleration due to gravity at certain height h small g acceleration due to gravity on surface of earth 1 - 2h h माने height केते height रे मार्क करछे and radius of the earth okay so this is the relation we have established and similarly depth को गले भी acceleration due to gravity decrease होची काहे कि decrease होची so तम भितरे क्वेश्चन आसुतबो जदी हमें डेप्थ को जीवा नेचुरली डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कमी जाउची सपोज एटा हला हमर सरफेस ऑफ अर्थ हमें कहिले डिस्टेंस बढ़िला को फोर्स कमी देला बट जेते डिस्टेंस कमी जीवो फोर्स तो बढ़िया कथा ना नेचुरली बट सपोज एटा हला हमर सरफेस ऑफ एटा हला अर्थ एंड दिस इज द सरफेस सो एटा हला हमर रेडियस हम सपोज ए डेप्थ को बोले केते डेप्थ कोले d डेप्थ को बोले एपटे रेडियस एटा हे गला सपोज r गैस राइट
सो क्लियरली तुम जानी परथुबो जदि हम डेप्थ को जाउछे जेति कि हमर साइज ऑफ द अर्थ बा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी रिड्यूस हेला माने एई साइज रो अर्थ दिला डेप्थ को गला को इन्फ्लुएंस ता एक्चुअली आसो एई साइज रो सो मास कमिला माने फोर्स भी कमी जिवो आउर जेते डेप्थ को जिबा सेते साइज डिक्रीज हे जिवो सो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ अर्थ रे साइज 0 मास 0 सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 राइट सो सेट में जेते डेप्थ को जिबा g रो वैल्यू कमी जिवो एंड से रिलेशन हला स्मॉल g एट सर्टेन डेप्थ d इक्वल टू स्मॉल g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू 1 माइनस d by r so very simple relation to remember small g on depth d equal to g जोड़े on the earth surface into 1 minus d by r d है depth so एक प्रकार relation but 82h twice of the height or altitude it simply रोची d so easy to remember right so the conclusion is acceleration due to gravity decreases as we proceed towards high altitude or as we proceed towards the depth or towards the center of earth right so mu bhabuchi tam सब बुझी सारी थिबो already we have completed the possible questions which are repeatedly coming in your exam council examination still jodi doubt hochi you can ask right thank you